हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज फिजियो फील्ड। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एबीजे एनालिसिस। सो व्हाट इज दिस एबीजे एनालिसिस? लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सो एबीजे की फुल फॉर्म क्या होती है? आर्टेरियल ब्लड गैसेज। तो ये एबीजे एनालिसिस होता क्या है? इट इज अ ब्लड टेस्ट विच मेजर्स द गैसेज लेवल, मेनली टू गैसेज लेवल that are carbon dioxide and oxygen is tested in the arterial blood. So this is only the blood test to determine the gases level present in the arterial blood. The ABG analysis determines the patient's three status, that is acid base balance, the alveolar ventilation and the oxygenation status. What is this acid base balance? We will discuss briefly in few seconds. The alveolar ventilation is that how much alveoli are functioning for the exchange of gases, and in the oxygenation status, the oxygen retention in the tissue which is used for the energy production. So these are the three main subheadings which we will discuss under the ABJ analysis. So before discussing all the three, first we should know that why physiotherapist uses this ABJ analysis. The main thing is, this is the important or valuable resource of information from the respiratory monitors which are present in the ICUs and also the outdoor patients to evaluate the therapy and progress of their disease. So it is the most important for getting the information and to evaluate the therapy. Next is the information which we are getting from this ABJ analysis is to integrate into the treatment plan or therapy planning. So this treatment planning will lead to the progression of treatment for the patient for the treatment of his or her diseases. So this ABJ analysis gives the information, then we evaluate that information to provide the perfect and required therapy to the particular disease the patient is suffering from. So now we will discuss all that 3 points that are: first, what is this acid base balance? So to know about it, first we have to understand what is normal body metabolism. So normal body metabolism is consumption of nutrition and the excretion of acid metabolite will both lead to the normal body metabolism. So the consumption of nutrition can occur by the mouth as we are taking food and by the lungs as we are inhaling the oxygen through the nose, and the excretion of acid metabolites are removed through the urine by the functioning of kidney and the anus, the digestive system also in the form of feces. So these two, the consumption of nutrition and the excretion of acid metabolites, will lead to the normal body metabolism. So here a question arises, what happens if the acid metabolites accumulate? So after turning a page, this acid metabolite accumulation is the main cause for the acid base imbalance. So for the functioning of acid base balance, this is important that the acid metabolites must be kept from accumulation in higher amount. Why? Because this cardiovascular system and the nervous system operative in relative narrow free H plus ion concentration. That means the vascular system and the nervous system only operate or only work in a decreased amount or in a narrow free H plus ion concentration. So the
ABB means acid base balance, maintain the body's metabolism, the normal body's metabolism by preventing the acid metabolites accumulation in a higher concentration. The normal range is important for the functioning, but the higher amount is probably the problem for the functioning of cardiovascular system and the nervous system. So this H plus ion concentration mainly will describe by the pH. So pH is equals to minus log H plus ion. The main other function is 98% of normal metabolites are in the form of carbon dioxide. So the carbon dioxide react with water to form what? Carbonic acid. So H2CO3. So according to the equation of Henderson, the Henderson demonstrates that H plus ion concentration results from the dissociation of this carbonic acid. So ये H plus ion कहाँ से develop होता है? By the dissociation of carbonic acid. So H2CO3 will dissociate into H plus and HCO3 minus. So this is the bicarbonate ion and this is the so this H plus ion concentration if accumulated or increased, then the cardiovascular system and the nervous system will not operate effectively and will lead to some diseases. So to discuss about how this H plus ion concentration and this bicarbonate ion concentration is balanced, we have to learn about renal buffering system. Let's start. What is this renal buffering system? The main function of kidney is excretion for maintaining normal metabolic acid. Mainly ये नॉर्मल मेटाबॉलिक एसिड को मेंटेन करने के लिए कुछ अननेसेसरी जो प्रोडक्ट्स होते हैं, अननेसेसरी बाय प्रोडक्ट्स होते हैं, उनको एक्सक्रीट आउट करती है. तो जो किडनी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है नेफ्रॉन, उसमें क्या होता है, हमने 11th-12th में जरूर पढ़ा होगा कि वो बाइकार्बोनेट आयंस को रीएब्जॉर्ब करते हैं और H प्लस आयन यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट होते हैं. तो H प्लस आयन एक्सक्रीटेड थ्रू द यूरिन एंड H प्लस आयन रीएब्जॉर्ब बाय द bicarbonate ion into blood. So this bicarbonate ion will reabsorb this H plus ion, and so the kidney respond to the acid base imbalance to return into the normal homeostasis. If any imbalance occur between the H plus ion and in the bicarbonate ion, the kidney will respond in this acid base imbalance and वो उसको ठीक करके अपना नॉर्मल होमोस्टेसिस मेंटेन करेगी. नाउ द नेक्स्ट मेजर हेडिंग इज नॉर्मल ब्लड गैसेस वैल्यू. तो ये क्या होता है, एसिड बेस मेनली हम पीएच से डिटरमाइन करते हैं, डिनोट करते हैं. तो ब्लड का नॉर्मल पीएच कितना होता है, 7.35 टू 7.45. तो अगर बिलो इट रेंज जाती है तो वो जो ब्लड होगा वो एसिडोटिक स्टेट में होगा, और बिलो दिस रेंज अबोव दिस रेंज अगर जाती है तो वो क्या होगा, एल्कोलोटिक स्टेट में होगा वो ब्लड. तो ये दोनों ये एक नॉर्मल रेंज है, ये बिलो द पीएच लेवल और दिस इज द अबोव पीएच लेवल. ठीक है. अब नेक्स्ट हेडिंग इज एल्वुलर वेंटिलेशन. ये पीएच का बड़ा रोल है, हम आगे देखेंगे. एल्वुलर वेंटिलेशन क्या होता है, एल्वुलर वेंटिलेशन रिफ्लेक्ट इन द प्रॉपर वेंटिलेशन इन फॉर्म ऑफ पार्शियल प्रेशर. तो हमको ये देखना है एल्वुलर वेंटिलेशन मेनली पार्शियल प्रेशर की फॉर्म में ही ज्यादा हमको इंफॉर्मेशन देता है. तो सबसे पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि पार्शियल प्रेशर क्या होता है. सो पार्शियल प्रेशर इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ अ सिंगल गैस मॉलिक्यूल विच इज प्रेजेंट विद अदर गैस. एग्जाम्पल के तौर पे ये एक तरीके का
टोटल जो प्रेशर है उसका कुछ पोर्शन होता है। जैसे अगर ये सारे गैस मॉलिक्यूल, पिंक गैस मॉलिक्यूल्स एंड ग्रीन गैस मॉलिक्यूल्स इस पर्टिकुलर कंटेनर में या पर्टिकुलर वॉल्यूम में प्रेशर लगा रहे हैं, तो ये सब मॉलिक्यूल जो प्रेशर लगा रहे हैं वो होगा टोटल वॉल्यूम। बट स्पेसिफिकली अगर हम पिंक गैस के प्रेशर की बात करें तो वो होगा 1 2 3, तो 3 पार्शियल प्रेशर होगा किसका, पिंक गैस मॉलिक्यूल का, और बचा हुआ ग्रीन गैस मॉलिक्यूल्स जिसका प्रेशर होगा 7। सो पार्शियल प्रेशर मेनली एक पोर्शन होता है टोटल प्रेशर का, ठीक है। तो नॉर्मल पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होता है, 35 to 45 mmHg। अगर बिलो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है लेस देन 35 mmHg, देन द पर्सन विल हाइपर वेंटिलेट और हाइपर वेंटिलेशन विल अकर। इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ब्लो ऑफ मोर। और अगर अबोव पार्शियल प्रेशर होता है जिसमें 45 mmHg से ज्यादा पार्शियल प्रेशर हो तो पर्सन हाइपोवेंटिलेट करेगा, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ब्लो ऑफ नहीं करेगा और एल्वियोलर वेंटिलेशन भी सही से नहीं होगा। अब हाइपर वेंटिलेशन में कार्बन डाइऑक्साइड ब्लो ऑफ मोर क्यों करेगा वो, क्योंकि हाइपर वेंटिलेशन मतलब जल्दी जल्दी सांस लेना या फिर कंजप्शन ऑफ मोर मोर ऑक्सीजन एंड ब्लो ऑफ मोर कार्बन डाइऑक्साइड। जितनी वो ऑक्सीजन लेगा उतना कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा भी ना, तो इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा ब्लो ऑफ करेगा क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा लेगा। बट हाइपोवेंटिलेशन में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड वो ज्यादा ब्लो ऑफ नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि डिक्रीमेंट इन द ऑक्सीजन कंजप्शन, ऑक्सीजन कंजप्शन में डिक्रीमेंट है क्योंकि इम्परफेक्ट गैसियस एक्सचेंज हो रहा है वहां पे ड्यू टू दिस हाई अमाउंट ऑफ पार्शियल प्रेशर। सो द पर्सन विल hypoventilate and carbon dioxide not blowing off. The oxygen status of artery, mainly the partial pressure of oxygen is in a normal range is 80 to 100 mmHg. अगर बिलो 60 से 80 की रेंज से भी बिलो अगर पार्शियल प्रेशर जाता है ऑक्सीजन का तो जो पर्सन होगा वो मॉडरेट हाइपोक्सिया की कंडीशन में होगा। और अगर 40 से भी कम पार्शियल प्रेशर होता है ऑक्सीजन का तो वो जो पर्सन होगा वो सीवियरली हाइपोक्सिया होगा, ठीक है, ऑक्सीजन की भारी मात्रा में कमी। तो ये जो दोनों गैसेस हैं कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, उनको इंटरप्रेट कैसे करेंगे हम, मेनली 2 पॉइंट्स आते हैं, बेस एक्सिस एंड बेस डेफिसिट। तो बेस एक्सिस के 2 टाइप होते हैं, पॉजिटिव बेस एक्सिस एंड नेगेटिव बेस एक्सिस। पॉजिटिव बेस एक्सिस और नेगेटिव बेस एक्सिस हम अभी डिस्कस करते हैं। उससे पहले हम ये समझते हैं कि जो ब्लड है उसमें कैपेसिटी होती है बफर को मेंटेन करने की या फिर बफरिंग करने की। तो नॉर्मल लेवल ऑफ बाइकार्बोनेट इन ब्लड कितना अमाउंट होता है, 22 to 26 मिलीमोल पर लीटर। तो अगर ब्लड की ये बफरिंग कैपेसिटी में कोई भी डिक्रीमेंट या डिमिनिशमेंट होता है तो किसकी वजह से होगा, या तो एसिडेमिया की वजह से या फिर एल्किलेमिया की वजह से। सो एसिडेमिया मीन्स एसिड इन ब्लड एंड व्हाट इज एल्किलेमिया, द प्रेजेंस ऑफ हाई अमाउंट ऑफ बेस इन ब्लड। तो हम ये जो ब्लड गैसेस हैं उनको डिटरमाइन करने के क्या मेथड हो सकते हैं, मेनली सबसे पहले हम बाइकार्बोनेट आयन से उनको डिटरमाइन करेंगे और या फिर H+ आयन की कंसंट्रेशन से बाय द हेल्प ऑफ pH। So by the method of first, when there is a decrease in the bicarbonate ion, अगर बाइकार्बोनेट आयन में कमी होती है तो नेगेटिव बेस एक्सिस बढ़ता है, जिसका मतलब क्या है कि बेस डेफिसिट प्रेजेंट है, मतलब बेस में कमी है। अब यहां से हम समझेंगे वो दोनों पॉइंट्स जिसमें है
जिसमें है पॉजिटिव बेस एक्सिस एंड नेगेटिव बेस एक्सिस. सो पॉजिटिव बेस एक्सिस का मतलब क्या है? प्रेजेंस ऑफ मेटाबॉलिक एल्किलोसिस एंड नेगेटिव बेस एक्सिस का मतलब क्या है? प्रेजेंस ऑफ मेटाबॉलिक एसिडोसिस. तो अगर हम इन दोनों वर्ड्स का मतलब समझें तो पॉजिटिव बेस एक्सिस मतलब बेस का अमाउंट या फिर बेस की कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो उस टर्म को हमने पॉजिटिव बोल दिया. बट अगर नेगेटिव बेस बोल रहे हैं हम, तो इसका मतलब ये है कि एसिड का अमाउंट ज्यादा है. तो एसिड का अमाउंट ज्यादा है, तो इसलिए हमने नेगेटिव बेस एक्सिस बोल दिया. ठीक है. तो अगर नेगेटिव बेस एक्सिस है, इसका मतलब बेस की डेफिशिएंसी है या फिर बेस की कमी है. तो ये जो नेगेटिव बेस एक्सिस वाला टर्म है, उसको हम क्या बोल सकते हैं? बेस डेफिसिट. तो ये इंटर रिलेटेड सा टर्म है. This negative base axis is increased due to the decrement in the bicarbonate ion that result in the base deficit. So this base deficit is seen in a negative number on the blood gas report, that is -3. The next method for determining this blood gases is by the pH according to the patient condition. तो नॉर्मल पीएच कितनी होती है? 7.35 to 7.45. तो अगर पीएच और फेजेस को हम डिफरेंशिएट करें तो क्या है? व्हेन पीएच इज नॉट इन अ नॉर्मल रेंज, अगर पीएच नॉर्मल रेंज में नहीं है तो वो जो पर्सन है या जो पेशेंट की कंडीशन है वो एक्यूट फेज में है. इफ पीएच प्रोग्रेसेस बैक टू द नॉर्मल, देन द patient's condition is in partially compensated, and if the pH is normal, then the patient condition is chronic or compensated. So that's all from my side about this arterial blood gas analysis. If you like the content, then please like my video, share and subscribe my channel. I will give the reference of this topic from where I have studied it. So, thank you.